So students, will start today with electron gain enthalpy. Good morning, ma'am. The symbol by which this term is expressed. Delta is change. H is the symbol for enthalpy. Change in enthalpy for the process, that is electron gain. For example, if E is an element and it gains one electron to form anion. Whenever an atom gains electron, obviously the negative charge will be increased because the number of protons are fixed. And if this process takes place in gaseous state, as we have discussed yesterday also, that ionization enthalpy values भी हम gaseous state में ही atom के लिए calculate करते हैं. Okay. Similarly, electron gain enthalpy is also the amount of enthalpy change associated with this process. Whatever will be the enthalpy change for this process when an atom gains an electron in its gaseous state to form anion. Gaseous anion अगर वो बना रहा है तो उस particular process में जितना भी enthalpy change या heat change हुआ है, that is termed as electron gain enthalpy. तो generally ये values जो है जैसे ionization enthalpy values है, they are always positive values because that amount of energy is to be given during the process. आपको वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स से रिमूव करना होता है तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है एटम को. बट दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इट मे बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव. दिस इज बिकॉज कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है. गेन कर रहा मींस इलेक्ट्रॉन आ रहा है बाहर से, तो दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस विद अट्रैक्शन फोर्स. तो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जनरली इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और जो एटॉमिक एनर्जी है दैट विल बी डिक्रीज्ड टू सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स जब डेवलप होते हैं एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड आउट. तो जनरली ये जो अमाउंट एनर्जी का है ये रिलीज्ड एनर्जी होता है. बट फॉर few atoms, those which do not have a tendency to gain electron, if they have stable configuration like noble gases, और अगर electropositive nature ज्यादा है, जैसे second group के जो elements है which have s orbitals completely filled, तो उनकी tendency नहीं होती electrons को gain करने की. तो for those elements these values may be positive or sometimes they may be zero. But in general जिन atoms की electron को gain करने की tendency higher होती है, those elements always release certain amount of energy when they gain one electron. Hence generally जो definition आती है electron gain enthalpy की वो यही है कि it is the amount of heat released when an atom gains electron in its gaseous state to form gaseous anion. You can write down definition if you want. The amount of energy or heat भी लिख सकते हो. The amount of energy released when an atom gains an electron in gaseous state to form an ion. The atoms or the elements for which the process of gaining electron is easier, have high negative values for electron gain enthalpy. Next, you can note down the factors affecting the value of electron gain enthalpy for a particular element. First one is atomic size.
इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होना है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियस का जो पुल है वो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स पे स्ट्रॉन्ग लगना चाहिए. देन ऑल्सो it will be easier for any element to gain electron, because this energy change is simply, you can say, it is a measure of electron attracting tendency of any element. ठीक है. तो एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा एटम का, उसके न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव पुल है दैट विल बी ग्रेटर टुवर्ड्स अपकमिंग इलेक्ट्रॉन. तो राइट डाउन atomic size. Smaller the size of atom, smaller the size of atom, more negative will be the electron gain enthalpy. जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी बेटा उतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी हायर. ये चीज याद रखना आपको. पॉजिटिव वैल्यू में जा रहा है तो वो वैसे वैल्यू मैथमेटिकली बड़ी होगी पॉजिटिव वाली, बट इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी उतनी ही कम होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेनिंग का मतलब अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए और अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी. तो नेगेटिव वैल्यूज, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जब भी हीट रिलीज होती है दैट एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव एनर्जी चेंजेस. ठीक है. तो नेगेटिव होना जरूरी है हायर, अगर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी हायर होगी. अगर आपने कंपेयर करना है वैल्यूज को देख के तो लार्ज नेगेटिव वैल्यूज जिनकी है वो एलिमेंट्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी वाले होंगे. ठीक है. सेकेंडली न्यूक्लियर चार्ज. तो सेकेंड फैक्टर दैट अफेक्ट the value of electron gain enthalpy is nuclear charge. जितने प्रोटॉन्स का नंबर, मतलब जैसे हम पीरियड्स में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, in the same shell electrons are entering but the number of protons are also increasing by 1. तो न्यूक्लियर चार्ज continuously increase होता है जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं. तो विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी विल आल्सो इंक्रीज. तो एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक जनरल ट्रेंड है वो यही है, इट बिकम्स मोर नेगेटिव टुवर्ड्स राइट साइड. जो 17th ग्रुप एलिमेंट्स हैं दे हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन और यू कैन से मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज. तो राइट डाउन with increase in nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज का मतलब बेटा एटॉमिक नंबर के साथ साथ जो प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं that is actually the nuclear charge. With increase in nuclear charge, electron gain enthalpy becomes more negative. Third factor, electronic configuration. Electronic configuration, obviously those elements which have more stable configuration, right? If they have exactly half filled or completely filled outermost shells, then they will not be having tendency to lose gain electron. और उन atoms में अगर आपने gain करवाना भी है electron तो आपको energy provide करनी पड़ेगी. तो for those elements, for example noble gases, उनकी high positive values, ठीक है, they do not have tendency to gain electron. Write down more stable configurations like completely filled, more stable configuration, or like completely filled or exactly half filled configurations. Do not have tendency to gain extra electron. If we talk about noble gases, तो एक न्यू शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे क्योंकि वो वाली शेल तो completely filled है. तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि अपने आप जब तक प्रोटॉन्स नहीं बढ़ेंगे तब तक वो होल्ड ही नहीं कर पाएंगे जो ऑलरेडी वहां पर प्रोटॉन्स हैं. दे विल नॉट होल्ड इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग इन द न्यू शेल. तो न्यू शेल स्टार्ट होना बहुत डिफिकल्ट है. इसलिए नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज है दे आर हाईली पॉजिटिव. ठीक है. सो नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट ट्रेंड्स, how it varies in a period or a group. Successive electron gain enthalpy values भी जैसे कल हमने बेटा किया कि फर्स्ट
इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हो, दैट अमाउंट इज कॉल्ड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. Similarly, electron gain enthalpy values can also be called as first electron gain enthalpy when atom gains first electron to form anion having one negative charge. अब सपोज आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना, जैसे ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन हैज अ टेंडेंसी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 2s2 2p4 कॉन्फ़िगरेशन है आउटर शेल में ऑक्सीजन की. ठीक है, 16th ग्रुप का एलिमेंट है, 2p4 कॉन्फ़िगरेशन आएगी. अब इट हैज और इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स लास्ट शेल ना. p ऑर्बिटल को कंप्लीटली फिल करना है. नियरेस्ट नोबल गैस जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. अभी आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया, बिकॉज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब जस्ट एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. देन द वैल्यू इज somewhat negative, high negative value होती है ऑक्सीजन की. But now if we need to add one more electron, because उसकी exact जो tendency है वो 2 electrons gain करने की है. करता है easily ऑक्सीजन 2 electrons gain, but जो amount होता है second electron gain enthalpy जो है ऑक्सीजन की, वो positive value है. Reason, क्योंकि already एक electron gain करने के बाद जो ऑक्सीजन, now it is represented by this, एक negative charge आ चुका है ऑक्सीजन पे. ऑलरेडी एटम अब नेगेटिवली चार्ज है. अपकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है दैट इज आल्सो नेगेटिवली चार्ज. सो 2 नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज विल रिपेल ईच अदर. तो रिपल्शन की वजह से कभी भी हीट रिलीज नहीं होती है एलिमेंट. जब भी कोई प्रोसेस होता है, अगर रिपल्शन चल रहा है तो हीट रिलीज नहीं होगी, रादर सम अमाउंट ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सराउंडिंग्स और यू नीड टू प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा हीट. ओके, तो ओवरऑल जो प्रोसेस है ना बेटा, वो इजीली हो जाता है. मतलब ऑक्सीजन कैन इजीली gain 2 electrons, because जो अगर दोनों को हम सम करें तो फर्स्ट वाली वैल्यू जो है वो ज्यादा लार्ज नेगेटिव वैल्यू है. तो दैट इज द रीजन दैट ऑक्सीजन कैन इजीली फॉर्म डाई नेगेटिव एनायन. बट अदरवाइज अगर हम इंडिविजुअल वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज नेगेटिव, whereas सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज पॉजिटिव. और ये रीजनिंग क्वेश्चन भी हम पूछ लेते हैं. तो रीजनिंग में आपको याद रखना है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तो आपने उसमें रिपल्शन टर्म यूज करना है, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्साइड आयन, अभी ऑक्साइड नहीं है ये, जस्ट ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज आया, तो ये जो आयन बना है एनायन, इट विल रिपेल द अपकमिंग इलेक्ट्रॉन. सो इट इज डिफिकल्ट फॉर. यस बेटा, पॉजिटिव साइन का मतलब है कि हीट एनर्जी आपने प्रोवाइड की ड्यूरिंग रिएक्शन, मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक है. ठीक है, और अगर नेगेटिव साइन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब वो हीट रिलीज हुई है. और एक एलिमेंट की जितनी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, उतना ही ज्यादा वो हीट रिलीज करता है. 17th ग्रुप एलिमेंट्स की सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है, क्योंकि उनको एक ही इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है. एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते ही वो स्टेबल हो जाती है कॉन्फ़िगरेशन, 2p6 पे चले जाते हैं. ठीक है, तो नेगेटिव होने का मतलब है कि गेन करने की टेंडेंसी हाई है, उतनी हीट रिलीज हो रही है. और हीट रिलीज होना हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ लाता है किसी भी एटम को. मतलब मिनिमम एनर्जी पे अगर होगा कोई भी सब्सटेंस, उतना ज्यादा स्टेबल होगा. क्लियर? तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है ऑक्सीजन, न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम में, टू कन्वर्ट इट इनटू दिस स्पीशीज, वन नेगेटिव चार्ज, दैट इज an exothermic process. But addition of second electron to this already formed anion is endothermic. उस टाइम पे स्लाइड पॉजिटिव वैल्यू है. बट अगर हम दोनों को ऐड, क्योंकि हमने तो ओवरऑल प्रोसेस अगर देखना है कि ऑक्सीजन क्यों डाई नेगेटिव एनायन बना लेता है इजीली, दैट इज बिकॉज कि दोनों वैल्यूज का जब हम ऐड सम करेंगे तो वो नेगेटिव ही आती है टोटल वैल्यू, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप है वो लार्ज नेगेटिव वैल्यू के साथ है, सेकंड स्टेप स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू. क्लियर? So this is how the successive and enthalpies values may vary. Write down this one. एक reasoning question भी है, important है. Heading देना successive electron gain enthalpy. Successive electron gain enthalpy. Addition of first electron. Addition of first electron to an atom to form anion is related to first electron gain enthalpy values
the heat changes और enthalpy change भी लिख सकते हो. Heat changes associated with gaining of second electron. Gaining of second electron by an atom or by already formed anion, you can write. By already formed anion is called second electron gain enthalpy. Which is either less negative or positive due to repulsion between anion and upcoming electron. एक एग्जांपल लिख लो. फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन हैज positive value for second electron gain enthalpy. Next, trends in electron gain enthalpy और variation किस तरह से होता है period में. Suppose if we discuss electron gain enthalpy values for second period elements, lithium 2s1, sorry, this is 2s2, 2p1, 2p2, 2p3. As you can see, electronic configuration, lithium के लिए एक electron gain tendency फिर भी as compared to beryllium it is easier. So somewhat lithium has negative ionization in the electron gain enthalpy, but for beryllium it is approximately zero or close to zero. बिल्कुल exact zero नहीं है, but it is आपको बुक्स में जनरली अप्रोक्सीमेट करके जीरो ही लिखा हुआ मिलेगा. फॉर बोरॉन इट इज स्मॉल नेगेटिव वैल्यू. उसके बाद नेगेटिव है नाइट्रोजन के लिए समवट बहुत कम है. अगर है भी तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो वैल्यू है वो इट्स वेरी लेस नेगेटिव बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. फिर ऑक्सीजन के लिए हाई नेगेटिव चली जाती है. फ्लोरीन के लिए मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है एंड देन नियॉन हैज high positive value of electron gain enthalpy. You need not to remember or memorize those values. Just एक trend याद रखो कि in general, एक जो general trend है थोड़े से exceptions को छोड़कर आपको electron gain enthalpy values up to 17th group they becomes more negative. While moving left to right in a period, electron gain enthalpy values becomes more negative due to फैक्टर्स क्या होंगे, किस वजह से हो रही है मोर नेगेटिव? डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ये दोनों फैक्टर्स हैं. तो रीजन आप साथ में लिख सकते हो बिकॉज इस चैप्टर में से बेटा रीजनिंग क्वेश्चंस ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट कि कौन सा ट्रेंड तो याद रखना ही है, उसके साथ साथ हर एक वेरिएशन का कॉज भी पता होना चाहिए. तो द कॉज by which, or you can say due to which, electron gain enthalpy becomes more negative up to 17th group. We are not discussing here for 18th group. उसके लिए अलग ही properties हैं हर एक जगह. ठीक है? More negative due to decrease in atomic size and increase in nuclear charge or effective nuclear charge भी लिख सकते हो. अब यहाँ पर आपको एक चीज याद करना, मतलब नोट करना है. Group 17 elements
have most negative electron gain enthalpy values in a particular period. अपने corresponding period में group 17 elements की most negative values है. Why? ये भी एक reasoning question है. Halogens have highest negative electron gain enthalpy values. Reason? Yes. The electronic configuration of halogen is NS2np5. So they require only one electron to become stable like the inert gases. Yes. That's why they have most Okay, good. So this is because of their electronic configuration, as they require just one electron to become more stable or to acquire noble gas configuration, and secondly they are smallest in size in the entire period. Size छोटा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी काफी है और साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसी है कि जस्ट एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट. So these all reasons you need to write whenever it is asked why group 17 elements have most negative electron gain enthalpy. You can note down these small points कि आपको जब reason explain करना है एक heading लिख सकते हो आप हर एक point को, because आपको exam में बेटा specially chemistry में questions जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा descriptive नहीं होता paper, but होता ऐसा है कि आप you need to apply your knowledge हर एक question में. और मार्किंग भी ऐसी होती है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं होते ज्यादा मार्क्स डिडक्ट करने के. अगर आप क्लियर कट एक वर्ड में भी रीजन पूरा लिख रहे हो, यहाँ आप लिख रहे हो जैसे ग्रुप 17 में ड्यू टू देयर कॉन्फ़िगरेशन NS2np5, आंसर इज करेक्ट. साथ में एक चीज और लिख दो बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, या एक चीज साइज छोटा लिख दिया, स्मॉलेस्ट साइज है उनका और दे हैव हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड. तो दीज आर द रीजंस दे हैव हाईएस्ट नेगेटिव in electron gain enthalpy value. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी 17 ग्रुप में होती है और इसी टेंडेंसी की वजह से ये सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स आपने 10th में प्रॉपर्टीज पढ़ी है, नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. तो जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट है उन्हीं एलिमेंट्स का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी हाईएस्ट होता है. नाउ नेक्स्ट वन मोर थिंग, नोबल गैसेस हैव high positive values. ये एक्सेप्शन है जो पूरे पीरियड में जो जनरल ट्रेंड है उससे हटकर, तो they have high positive value. Reason is just one, they have completely filled outermost shell, so no tendency to gain. और एक चीज और लिख सकते हो कि if electron will be added, then that will be added in a new shell. Principal shell जो है n का नंबर ही चेंज हो जाएगा, एक न्यू शेल बननी स्टार्ट हो जाएगी. तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप इजीली कर पाओ नोबल गैसेस. ओके, इसके अलावा और कोई एक चीज आपको वो हम ग्रुप वाइज डिस्कस करते हैं. फर्स्टली वेरिएशन इन अ ग्रुप. How electron gain enthalpy values change in group. For example, we discuss halogens group जिनकी already values higher है. तो for 17 group elements एक जनरल ट्रेंड अगर हम देखें कि साइज अगर बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, क्योंकि बड़ा एटम है उसके न्यूक्लियस का पुल लास्ट अपकमिंग इलेक्ट्रॉन तक इतना नहीं जा रहा, ऑलरेडी नहीं जा रहा, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी वो उतना इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. तो क्लोरीन सबसे छोटा है, आयोडीन सबसे बड़ा है. तो एक जनरल ट्रेंड ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव. होगी तो नेगेटिव ही इन चारों के लिए, आयोडीन भी इजीली एनायन बनाता है, बट वैल्यूज को अगर हम कंपेयर करें या टेंडेंसी को कंपेयर करें तो आयोडीन की वो लीस्ट है, फ्लोरीन की मैक्सिमम होनी चाहिए अगर हम साइज को कंपेयर करते हैं. बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से एक्सेप्शन दैट क्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अमंग हैलोजेंस. इवन अगर हम पीरियोडिक टेबल की ही बात करें तो क्लोरीन हैज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन. रीजन क्या आएगा यहाँ पे, फ्लोरीन और इवन आप सारे जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है इसमें आप ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर कंपेयर करो, नीचे जो इसके ग्रुप में एलिमेंट आएगा सल्फर आएगा, इसमें 15th ग्रुप का सेकंड एलिमेंट सल्फर या नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस. अगर इन तीनों की वैल्यूज कंपेयर करते हैं तो ये सेकेंड ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए वैल्यूज लेस नेगेटिव है एज कंपेयर टू द नेक्स्ट एलिमेंट, जो एक जनरल ट्रेंड के एक्सेप्शन पे है. तो वो रीजन क्या है, बिकॉज सेकेंड शेल में जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है तो सेकेंड शेल
बहुत छोटा एटम होते हैं जिनमें 2 ही शेल्स होते हैं, तो बहुत छोटे एटम्स के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आने से क्या होगा, 2p कंप्लीटली फिल हो गया हेलोजेंस के लिए। इसमें भी जिसमें भी इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ते हैं अगर ऑर्बिटल्स छोटे होते हैं साइज में। तो 2p इज स्मॉलर देन 3p। 3p के बाद ये इतना प्रोनाउंस नहीं रहता इफेक्ट, तो ये इफेक्ट सिर्फ आपको इन 2 एलिमेंट्स के केस में एक्सेप्शन मिलेगा कि फर्स्ट एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज सेकंड वाले से लेस नेगेटिव है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट डाउन। अब पहले ट्रेंड लिख लेते हैं। वेरिएशन इन अ ग्रुप, मूविंग डाउन अ ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes less negative, or you can say decrease होती है value, becomes less negative due to increase in atomic size, and decrease in nuclear charge. यहाँ एक्सेप्शन लिखो, एक्सेप्शन, फ्लोरीन has less negative, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन दोनों साथ ही कर दो, फिर अलग अलग लिखवाना पड़ेगा। तो फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन हैव लेस नेगेटिव वैल्यूज देन क्लोरीन एंड सल्फर रिस्पेक्टिवली। कंपैरिजन उन्हीं के ग्रुप में करना है आपने। फ्लोरीन की वैल्यू होनी चाहिए थी क्लोरीन से ज्यादा, बट कम नेगेटिव है। सिमिलरली ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इट मस्ट बी और इट शुड बी लेस नेगेटिव देन सल्फर, मोर नेगेटिव देन सल्फर, बट इट इज लेसर। तो रीजन लिख लो एक ही है, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, in smaller 2p orbitals of oxygen and fluorine. These are some exceptions and जो general trends है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इतना एनसीईआरटी में है। अदरवाइज few things you can also mention। नाइट्रोजन की जितनी नेगेटिव मतलब होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, यहाँ पर एक्सेप्शन आता है कि इट इज समवेयर अप्रोक्सीमेटली 0 आ जाती है बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए तो है ही पॉजिटिव। बेरिलियम में भी जो 2s2 completely filled है, it has approximately 0 वैल्यू। इसके नीचे जो मैग्नीशियम है वो भी 3s2 पे आएगा, उसके लिए भी approximately 0 वैल्यूज है। नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आता है, उसकी 0 नहीं है, बट ट्रेंड में आपको उतना चेंज नहीं मिलेगा जितना होना चाहिए। तो एक्सेप्शंस जहां आते हैं बेटा, वहां आपको 2-3 चीजें देख लेनी है। तो साइज अगर इस तरह से स्मॉल है, 2p में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं, तो ग्रुप वाइज जो ट्रेंड मिलेगा आपको नेक्स्ट में वहां एक्सेप्शन आएगा। यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड शेल है, देन पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, तब भी ट्रेंड में वेरिएशन, मतलब नाइट्रोजन के लिए जनरली आपको वेरिएशंस मिलेंगे, चाहे आप साइज में देखो, चाहे आप आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज देखो। ओके, so this property is clear. Next periodic property we'll discuss